Okay, so good afternoon to all of you. Good morning to all of you. So today I'm going to start your new topic in special contract. Last time we have discussed about contract of bailment and pledge, and I have shared my video with you. मैंने पूरा contract of bailment और pledge जो है complete करा दिया था. So today I'm going to discuss about a special contract, that is contract of agency. Contract of agency. Okay, so contract of agency, what do you mean by contract of agency? देखो contract of agency क्या होता है in this in this present business environment, it is very important to do business all over, means scattered business. हम क्या करते हैं, scattered business करते हैं जिससे हमारा जो है जो प्रॉफिट है तो वो इंक्रीज होता है. सपोज अगर हम एक जगह से बैठ करके ही बिजनेस करेंगे तो इट इज नॉट पॉसिबल टू अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. बट इन ऑर्डर टू अर्न गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने बिजनेस को एक्सपैंड करें. अच्छा, बिजनेस को एक्सपैंड तो हम कर देंगे, बट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी ऑल्सो टू टेक बिजनेस फ्रॉम एवरीवेयर. मैं ये नहीं कि मैं हर जगह जाकर के बिजनेस करूंगा. सो दैट्स वाई एन एजेंट इज अपॉइंटेड ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल टू डू द एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल. इसका क्या मतलब है कि हम अपना एक एजेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं या एक एजेंट एम्प्लॉय करते हैं जो कि प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करता है और प्रिंसिपल के बिहाफ पे एक्ट करता है. ईच एंड एवरी एक्ट बाय द एजेंट बाइंड्स ऑन द प्रिंसिपल. तो ये दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी. ये जो प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में जो रिलेशन है, whatever relationship between agent and principal is there, that relationship is called contract of agency. या हम कह सकते हैं कि जो relationship create होता है, that relationship is created through contract of agency. So agency is concerned with the principal agent relationship and this relationship is fiduciary in nature. Fiduciary in nature का मतलब क्या है कि ट्रस्ट का. ये जो रिलेशनशिप बिटवीन नेचर एजेंट एंड प्रिंसिपल है, ये दिस रिलेशनशिप इज टोटली बेस्ड ऑन ट्रस्ट. फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है. द एजेंट्स एक्शन बाइंड द प्रिंसिपल टुवर्ड्स द थर्ड पार्टीज. व्हाटएवर एक्शंस ऑफ एजेंट इज देयर दैट बाइंड्स द थर्ड पार्टीज. वो थर्ड पार्टी को क्या है, वो बाइंड करता है. इट मीन्स दैट, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट द प्रिंसिपल इज लायबल फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ द प्रिंसिपल. प्रिंसिपल के सभी एक्ट के लिए, सॉरी एजेंट के सभी एक्ट के लिए क्या है, प्रिंसिपल लीगली बाउंड करता है. ठीक है. सो नाउ सेक्शन 182 चैप्टर 10 जो है, चैप्टर 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डील्स विद द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी. चैप्टर 10 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का, दैट डील्स विद द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी. ओके, नाउ सेक्शन 182. Section 182 defines an agent as a person employed to do any act for another person or to represent another in dealings with third person. It means that an agent is a person. An agent is a person employed to do any act. Employed to do any act on behalf, to do any act for another, to do any act for another or to represent another in dealings with third person. The person for whom such act is done or who is so represented is called principal. The person for whom the work so done or who is so represented is called principal. इसका मतलब क्या है? Suppose that A is working on behalf of B.
A is working on behalf of B, it means that B has employed a person named A to do all the work on behalf of B. इसका क्या मतलब है कि A जो है वो सारे काम किसके बिहाफ पे कर रहा है? B के बिहाफ पे कर रहा है. A is representing B while dealing with others. Suppose that A जो है अगर वो C के साथ कोई काम कर रहा है, डील कर रहा है, तो it means that A is not doing for his own. He is doing for his principal, for another person, to represent another person in front of C. So the person who is being represented by A in this transaction, that person is called principal. ठीक है, या जिसके जो A है वो जिसके लिए काम करेगा या जिसको रिप्रेजेंट करेगा, that person is called principal. और A is called agent. The person who does the act is called an agent, and the person for whom the work is done, that is called principal. Is it clear? Is it clear? Yes, sir. Okay. So now meaning of agent. Agent क्या है? अगर मैं इस definition से agent की definition निकालूं तो an agent is a person. An agent is a person an agent is a person for whom an act for employed to do any act for another. इसका मतलब क्या है? An agent is a person employed to do any act for another, that is called agent. An agent is a person employed to do any act for other, that is an agent. और principal क्या है? Principal क्या है? The person who is the person for whom the work is done, for whom the work is done, or who is being represented, who is so represented, is called principal. ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया? प्रिंसिपल और एजेंट की डेफिनेशन देखी कि प्रिंसिपल कौन है और एजेंट कौन है. नाउ एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एन एजेंसी. व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स? मैंने पहले बताया था कि जब भी हम कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वहां पर हम उसके एसेंशियल एलिमेंट्स को जरूर पढ़ते हैं कि इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स. तो यहां पर भी हमको क्या करना है? एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, या हम इसको बोलते हैं टेस्ट ऑफ एजेंसी. हम टेस्ट कैसे करेंगे कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है ये रियली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है? तो उसका टेस्ट जो है that is called, हम essential elements देखेंगे. If all the essential elements is present in particular contract, then we can say that this is the contract of agency. तो पहला क्या है? Agreement between the principal and the agent. It means that there must be an agreement. यहाँ पे क्या है? Agency relationship arises from an agreement between the principal and the agent. The relationship of agency may be created either by express or by implied. इसका क्या मतलब है? There must be an agreement. There must be an agreement. वहां पर क्या है कि there must be an agreement between the principal and agent in order to create the contract of agency. तो ये जो contract of agency create होता है तो उसमें क्या है कि agreement must be there. Without agreement there will be no any contract of agency. जब तक वहां पे agreement नहीं होगा तब तक कि वहां पर contract of agency नहीं होगा. और कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ईदर इन वर्ड्स ऑफ माउथ, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड. या एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है या इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, दोनों में से कोई किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है. ईदर एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट इज देयर और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट इज देयर. सेकंड एसेंशियल एलिमेंट क्या है? कंपिटेंसी ऑफ प्रिंसिपल. कंपिटेंसी ऑफ प्रिंसिपल. कंपिटेंसी ऑफ प्रिंसिपल का मतलब क्या है? टू कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, the principal must be competent to contract. The principal must be competent to contract. It means that the person who is of majority of age or is of sound mind can enter into a contract of agency. ठीक है, मैंने competency of parties पढ़ा था कि competency of parties क्या है, इस पे मैंने पूरा एक वीडियो बनाया था. तो यहां पर क्या है कि principal must be of competent. तो यहां पर क्या है? to constitute a valid contract,
the principal must be competent to contract. According to section 183 of the Contract Act, any person who is of the age of majority according to the law to which he is subject and who is of sound mind may employ an agent. इसका क्या मतलब है कि any person, वो person जो sound mind का है और जो majority of age का है, means more than 18 years का है, तो in that particular case that particular person can appoint his agent. कोई minor है या कोई unsound mind का person है, he cannot appoint his agent. He cannot act as a principal. वो principal नहीं बन सकता है. यहां पर principal की competency is important. Principal should be competent to contract. Next क्या है? Competency. No competency of agent. मैंने कहा कि the principal should be competent to contract. But in case of agent, the competency of agent is of no question. यहां पर कोई माइनर जो है, माइनर कैन ऑल्सो एक्ट एज एन एजेंट. जब हमने यहाँ पे कॉम्पिटेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था तो उसमें मैंने एक एक्सेप्शन पढ़ा था कि इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, वहां पर जो एजेंट है वो माइनर एज का हो सकता है, वो भी क्या है, ही कैन एक्ट एज एन एजेंट. तो यहां पर क्या है, सेक्शन 184 स्टेट्स दैट as between the principal and third person any person may become an agent. थर्ड पर्सन मतलब मेरे एग्जांपल में B और C के बीच में कौन पर्सन था, A था, जो कि एजेंट था. तो between the third person and principal any person can become the agent. Thus the law does not devoid a minor from becoming an agent. Any person may become an agent, even a minor or a person of unsound can become an agent. ठीक है. तो यहां पर क्या है कि कॉम्पिटेंसी ऑफ जो एजेंट है दैट इज ऑफ नो क्वेश्चन. एनी इनकॉम्पिटेंट पर्सन, कोई अनसाउंड माइंड का पर्सन है या कोई माइनर है, ही कैन ऑल्सो बिकम एज एन एजेंट. ठीक है. तो यहां पर क्या है, नो कॉम्पिटेंसी ऑफ एजेंट. नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप्स. कॉन्ट्रैक्चुअल relationships. In contract of agency, the agent brings his principal into the contractual relationship with the third parties. In other words, we can say that the agent is a connecting link between the principal and third party. इसका क्या मतलब है, मैंने पहले ही बताया था, whatever act is done by the agent that is legally bounding on the principal. It means that the principal is legally bound या legally bind to act according to the act of agent. सपोज दैट अगर एजेंट ने थर्ड पर्सन के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो थर्ड पर्सन या जो थर्ड पार्टी वो एजेंट को नहीं क्लेम करेगी या एजेंट का गला नहीं पकड़ेगी, वो किसका गला पकड़ेगी, प्रिंसिपल का. बिकॉज प्रिंसिपल इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय दैट एजेंट. प्रिंसिपल इज गोइंग टू रिप्रेजेंट प्रिंसिपल इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय दैट एजेंट. तो इसका क्या मतलब है कि द एजेंट बाइंड्स द प्रिंसिपल विद थर्ड पार्टी इन कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप. मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस हैं वो किसके होंगे, प्रिंसिपल के होंगे, ना कि एजेंट के होंगे. तो इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी द एजेंट ब्रिंग्स हिज प्रिंसिपल इनटू द कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप विद द थर्ड पार्टी. द एजेंट ब्रिंग्स हिज प्रिंसिपल इनटू द कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप विद द थर्ड पार्टी. तो ये जो भी एक्ट एजेंट करेगा उसके लिए लायबल कौन होगा, प्रिंसिपल लायबल होगा पर्सनली. ठीक है. नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट ऑफ कंसिडरेशन. रिक्वायरमेंट ऑफ कंसिडरेशन मैंने पहले बताया था कि इन अंडर सेक्शन 10 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में था कि वैलिड कंसिडरेशन शुड बी देयर, लॉफुल कंसिडरेशन शुड बी देयर, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट मैंने बताया था. लेकिन वहां पर एक एक्सेप्शन था कि इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, it can be of without consideration. It can be without consideration. So in case of contract of agency, if there is no any consideration, still that is a valid contract. वो क्या है, वो हमारा valid contract होगा. अगर वहां पे कोई हमारा consideration नहीं भी है, in case there is no any consideration in contract of agency, still that is a valid contract. So no consideration is necessary for creating an agency. Thus the contract of agency without consideration is a valid contract. मतलब कि विदाउट कंसिडरेशन के भी हमारा क्या है, ऑल्दो हमने कहा कि भाई नो कंसिडरेशन देयर विल बी नो कॉन्ट्रैक्ट, ये एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है.
बट ये स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी. सो फॉर दिस स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड. सो दिस कॉन्ट्रैक्ट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इवन विदाउट कंसिडरेशन. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा क्रिएशन ऑफ लीगल रिलेशंस. क्रिएशन ऑफ लीगल रिलेशंस, इसका क्या मतलब है? An agent establishes the legal relations between the principal and the third parties. The principal is answerable for the acts of agent to the third parties. इसका क्या मतलब? Creation of legal relations का मतलब क्या है? वही है कि whatever act is done by the agent, those acts are legally bind on the principal. मतलब principal जो है वो personally liable है all those acts which are done by the agent. Agent जो भी काम करता है वो किस पर बाइंडिंग है? प्रिंसिपल के ऊपर बाइंडिंग है. प्रिंसिपल इज अलोन आंसरेबल फॉर ऑल दोज एक्ट्स. एजेंट को कोई नहीं कहेगा एजेंट इज नॉट आंसरेबल. प्रिंसिपल इज आंसरेबल. प्रिंसिपल इज अकाउंटेबल. प्रिंसिपल को जवाबदेही होगी कि भाई जो भी एक्ट उसने एजेंट ने किया है ओनली प्रिंसिपल इज अकाउंटेबल फॉर दोज एक्ट्स. तो इसका क्या मतलब है? प्रिंसिपल क्रिएट्स द लीगल रिलेशन या लीगल ऑब्लिगेशंस ऑफ एजेंट फॉर द थर्ड पार्टी. थर्ड पार्टी के लिए लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है. प्रिंसिपल के लिए कौन क्रिएट करता है? एजेंट क्रिएट करता है बाय हिज एक्ट. नेक्स्ट है इंटेंशन ऑफ द पर्सन टू एक्ट. इंटेंशन ऑफ द पर्सन टू एक्ट. Intention of the person to act on behalf of someone is very important in a contract of agency. Where a person intends to act on behalf of another, he becomes an agent even if in the absence of contract. इसका क्या मतलब है कि अगर मुझे किसी का एजेंट बनना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटेंशन शुड बी देयर. विदाउट इंटेंशन देयर विल बी नो एनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी. अगर मैं किसी का एजेंट बनने के लिए इंटेंडेड नहीं हूं, इफ देयर इज नो एनी इंटेंशन टू एक्ट एज एन एजेंट ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, अगर मेरा ये इंटेंशन नहीं है कि मैं किसी थर्ड पर्सन या किसी दूसरे पर्सन के लिए काम करूं या किसी दूसरे पर्सन के बिहाफ पे काम करूं, इन दैट पर्टिकुलर केस देयर विल बी नो एनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी. बट with intention, if intention is there to work for another person or to work on behalf of another person, in that particular case there is a contract of agency even without contract, without any proper कॉन्ट्रैक्ट. मतलब वहां पे अगर कोई प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी है, स्टिल अगर मेरा इंटेंशन है किसी के लिए काम करने के लिए, किसी के बिहाफ पे काम करने के लिए, तो दैट क्रिएट्स द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी. तो इट मींस दैट इंटेंशन इज इंपॉर्टेंट. विदाउट इंटेंशन देयर विल बी नो एनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी. बट इफ अ पर्सन प्रिटेंड्स दैट ही इज एन एजेंट, नो एजेंसी कैन अराइज. अगर मैं प्रिटेंड कर रहा हूं, मैं ऐसा शो ऑफ कर रहा हूं, मैं ऐसा शो कर रहा हूं कि मैं उसका किसी पर्टिकुलर पर्सन का एजेंट हूं, that doesn't amount to contract of agency. ठीक है. So if he intends to act on his own behalf and not on the behalf of the alleged principal, ठीक है, तो no agency can arise if he intends to work on his own behalf. भाई मैं अपना ही प्रिंसिपल, अपना ही एजेंट नहीं बन सकता हूं. ठीक है. तो अगर मेरा इंटेंशन ये है कि मैं अपने ही बिहाफ पे काम करूं, अपने ही आपको रिप्रेजेंट करूं, तो देयर विल बी नो एनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में अनदर पर्सन मस्ट बी रिप्रेजेंटेड. Work should be done for another person. Intention should be there to do the work for another person. मतलब मेरा इंटेंशन क्या होना चाहिए कि मैं किसी दूसरे के लिए काम करूं, अपने लिए काम नहीं करूंगा, मैं किसी दूसरे के लिए काम करूंगा. देन ओनली देयर विल बी अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी. नेक्स्ट है प्रिंसिपल इज लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ एजेंट. ये मैं बार बार डिस्कस कर रहा हूं कि प्रिंसिपल इज लायबल, प्रिंसिपल is liable for the act of agent. इसका क्या मतलब है कि only principal is liable for the acts of agent. एजेंट जो भी काम करता है, एजेंट जिसके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, एजेंट जिसके साथ भी डील करता है, all those contracts, all those acts, all those dealings of an agent is legally binding on the principal. Principal is solely responsible for all the acts, all the contracts, all the dealings done by the agent. So the principal is liable for all the acts of an agent which are lawful
एंड विद इन द स्कोप ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी। मैंने एक अथॉरिटी दे रखी है कि भाई इस अथॉरिटी में रह करके आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है। अगर एजेंट उस अथॉरिटी के बाहर जा करके किसी से कॉन्ट्रैक्ट करता है, इन दैट पर्टिकुलर केस प्रिंसिपल इज नॉट लायबल फॉर दोज कॉन्ट्रैक्ट्स। लेकिन अगर एजेंट विद इन द गिवन अथॉरिटी किसी थर्ड पार्टी के साथ कोई एक्ट करता है या कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस द प्रिंसिपल इज लायबल फॉर ऑल दोज एक्ट्स which are done by the agent. Is it clear to all of you? सर Yes. सर कुछ बच्चों की क्लास ज्वाइन नहीं हो रही, वो ग्रुप पे बार बार मैसेज कर रहे हैं। Okay, let me check. वही है ना, बीच में फिर वो ज्वाइन करेंगे तो I would face problem for accepting the request. मैंने पहले ही कहा था कि they should join at the earliest. Okay, you can see here that I have to go back and accept their request. Okay, so now ये तो था हमारा essential elements of contract कि हमें यहाँ पे means to test the contract of agency, these essential elements should be present there. Is it okay? Is it fine? Have you got